یہ پروگرام شروع ہونے لگا۔ وعلى آلك أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد۔ حضور کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت کے کھول نچھاور فرما رہے تھے سبھی بھائی۔ کیا قائم رکھنے کا حال تھا اس حاجی حسین چودھری فرما رہے تھے، اور میں آپ کے سامنے ہمارے خدمت کے سرپرست اعلیٰ گجر صاحب کے جو ہیں خیرات کے ساتھ فرما رہے تھے، ہمارے خدمت کے صدر حمزہ وحید صاحب میں آپ فرما رہے تھے۔ اب میں ہمارے موجود مہمان جیسے کہ سردار جاز گجر صاحب نے آپ کے بارے میں بہت ہی ایسے انداز میں گفتگو فرما دی ہے، میری مراد چودھری ساجد اشرف گجر صاحب آپ آئیں اور اپنے خیالات کا ایگزیکٹو ممبران عہدیداران، خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی، اہلیان علاقہ، السلام علیکم۔ کن با خدا کا، تو ایک اچھے معاشرے کی تکمیل کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں جو چودھری ساجد اشرف گجر صاحب ہم سے کر رہے تھے۔ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ میں چودھری شاہد اقبال گجر صاحب کو اہل علاقہ السلام علیکم۔ پچھلی دفعہ میں یہاں پہ حاضر ہوا، فرسٹ ٹائم مجھے پتہ چلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ اس کے بعد ہمارے جو دو مہمان خصوصی ہیں ساجد اشرف گجر صاحب، ان کے ممنون ہیں، یہ شورکوٹ سے آئے ہیں، اور شاہد گجر صاحب یہ اپنی انتخابی مہم چھوڑ کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اشرف بھائی اور شاہد صاحب کو ہم نے کیوں انوائٹ کیا ہے۔ بھائی ساجد صاحب شورکوٹ کینٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے شورکوٹ میں جو رفیقی بیس پہ ایک ہاسپٹل ہے بہت بڑا، یہ اس کو بڑی آسانی سے اور کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبان ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں اور مریضوں کی تشخیص کرتے ہیں، اور شاہد گجر صاحب انہوں نے ماشاءاللہ TH2 کمالیہ میں ہارٹ کا وارڈ اور گردوں کے ڈائلسس کے لیے ایک پورا وارڈ بنایا ہے، جن کو یہ پرائیویٹلی ان کے دوست اور یہ سب احباب مل کر چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو کلیپنگ کرنی چاہیے۔ یہ دونوں شخصیات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے پیر محل میں بھی یہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب اس کو پایا تکمیل پر پہنچانا ہے۔ کارڈیالوجی سینٹر کا پروسیس جیسا کہ ہمارا پچھلے سال بھی پروگرام ہوا تھا، وہ تقریباً 90% ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب پیر محل میں کارڈیالوجی سینٹر کا افتتاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام 1 سال کے وقفے سے ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال کے دوران پورے ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں شروع ہو گئی تھی۔ الحمدللہ خدمت خلق پیر محل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈسٹرکٹ ٹوبہ میں یہ وہ تنظیم تھی جس نے 1 کروڑ روپے کے فنڈ سے راجن پور میں تمام سیلاب زدگان کی مدد کی۔
मदद भी ये नहीं हम रोड पे छोड़ के आगे सामान, हमने रेस्क्यू राजनपुर आर्मी के दस्तों और एयर फोर्स की मदद से हमने उन लोगों तक राशन पहुंचाया जिन तक कोई पहुंचा नहीं था। उसमें हमारे सदर साहब, हमजा भाई साहब और पूरी टीम 2 दिन वहां रही। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर साहबान भी थे, वो कश्तियों में जाकर लोगों का इलाज करते रहे। तो इसके बाद मकामी सतह पे तो काम चलते ही रहते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि पीर महल के जितने भी रफाही काम है, जितने भी दोस्त आए हैं, उनमें जरूर हिस्सा लिया करें, जरूर हिस्सा लिया करें। ये आपकी फलाह के लिए है। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सबसे पहले तो ब्लड बैंक का शोबा है, जो रोज़ बरोज़ ब्लड का जो इश्यूज़ हैं वो थैलेसीमिया की सूरत में हो या एमरजेंसी की सूरत में हो या एक्सीडेंट की सूरत में हो, तो खिदमत खलक वो ज़ोर शोर से जो है वो खून का अतिया जो है वो हमारे मेंबरशिप हों, हमारे मेंबर हों या कोई भी, हम उसका फौरी अरेंज करवा के देते हैं। उसके अलावा जो है हमारा मजदूरों के लिए है शोबा, वो व्हील चेयर्स हैं, जो जितने भी मुस्तहिक हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम व्हील चेयर्स का जो है अतिया देते हैं। उसके अलावा जो हमारे हैं ख़वातीन हैं, बेवा हैं, जो घर में जो रोज़गार अपना चला सकें, उसके लिए सिलाई मशीनें दे रहे हैं हम। उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक की आमद है, वो अल्लाह ताला हम सबको रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इसमें सहरी और अफ्तारी का जो प्रोजेक्ट है हम शुरू कर रहे हैं पिछले सालों की तरह, तो इस पे भी हम सहरी जो है, जो मुस्तहिक हैं, जो रोज़ा रखना चाहते हैं और इसमें सहरी का अरेंज नहीं है, उनको घरों पे हम डोर बाय डोर जो है सहरी और अफ्तारी उनके पहुँचाएंगे। हम कुछ लिस्टें हमने तैयार की हैं और कुछ आपसे भी कहते हैं जो आपकी नज़र में हो उसकी निशानदही करें, और हमारा खिदमत खलक के जो मेंबर्स हैं उनके घरों में डोर बाय डोर जो सहरी और अफ्तारी पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, रमज़ान मुबारक की रहमतें समेटें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ लाए। खिदमत खलक बाकी तंजीमों से बिल्कुल डिफरेंट है। खिदमत खलक ना तो किसी से डोनेशन मांगती है, ना अल्हम्दुलिल्लाह लेती है। मेरे काफी ऐसे दोस्त इधर बैठे हैं, मेरे पास पहले आए हैं, कहते हैं कि हमसे कोई डोनेशन ले लो, हमसे पैसे ले लो, लेकिन मैंने कहा कि अपने अपने गाँव में, अपने अपने सिटी में जिधर से भी आप आए हैं, आप उधर जाके आप हमसे ज्यादा मुस्तहिक लोगों को जानते हैं। इंसान जिधर होता है उधर के मामला को सबसे पहले जान सकता है। जो भी उनके पास फंड्स हैं वो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। खिदमत खलक हर वो काम करती है जिसकी मुस्तहिक को जरूरत होती है। हमारे पास शाह गुजर साहब हमारे मेहमान खुसूसी है, भाई साजिद अशरफ साहब मेहमान खुसूसी है। भाई साजिद अशरफ साहब बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल शोरकोट सिटी में चला रहे हैं। हम भी इनके इंशाअल्लाह ताला तरीके पे अमल करते हुए पीर महल में इंशाअल्लाह ताला ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। शाहद भाई भी हमारे मेहमान खुसूसी हैं कुमालिया से, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल का काम बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। काफी दफा हमारा इनसे मशवरा हुआ है कि हम भी पीर महल में कार्डियोलॉजी सेंटर बनाना चाहते हैं। इन्होंने हमें तसल्ली भी दी है और इन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह हर तरीके से आपके साथ तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी खिदमत खलक ना किसी को जो राशन देती है किसी की इज्जत को मजबूर नहीं करती। खिदमत खलक ऐसे काम करती है ना किसी को पता चलता है, ना उसके हमसाये को पता, ना किसी हमारे मेंबर को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खलक के हजारों की तादाद में मेंबर मौजूद हैं। हम दूसरा काम इधर शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खिदमत खलक का मिशन है, आप साइडों पे देख रहे हैं दुरूद शरीफ लगा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये हम हर एक अपने आने वाले मेहमान को ये गिफ्ट भी देंगे इंशाल्लाह और दुरूद शरीफ को आम करेंगे। ये भी खिदमत खलक का अहम मिशन है। शुक्रिया। दोस्त जो हैं वो नए आए हैं, उनको खिदमत खलक का थोड़ा सा मंशूर भी बताना ज़रूरी है। हमारे जनरल सेक्रेटरी एक नए मुंतखब हुए हैं, सैयद बादल शाह साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाएं
اور سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر ہمارے سعید صاحب یہاں پہ ہیں، اور اسی طرح سینئر نائب صدر رمضان صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرمائے، جو نئے جو ہیں ان کو یہ عہدے دیے گئے ہیں۔ خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ ایک راشن کا تھیلا لے کے کسی کے گھر دے کے آنا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادات جو ہیں اسلام میں چند مخصوص ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کسی اندھے کو اگر ہم راستہ دلاتے ہیں، سڑک پار کرواتے ہیں، تو یہ بھی خدمت خلق کے جذبے میں آتا ہے۔ خدمت خلق ایک ایسا وسیع پلیٹ فارم ہے جس میں اگر آپ اپنی آنکھ کھولیں، اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم نے الحمدللہ کبھی کوشش ہی نہیں کی یہ سوچنے کی ہم کے دنیا میں آئیں کس لیے ہیں، روٹی پانی تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تو آج یہاں پہ جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ عہد کریں کہ کسی کو راشن نہیں دینا آپ نے نہ دے، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے اطراف میں اگر کوئی بھوکا ہے، کم از کم اس سے 2 میٹھے بول لیں جا کے۔ تو یہاں پہ جتنے احباب بیٹھے ہیں الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے یہ عہد کریں گے کہ اس رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے محلے میں، اپنے گھر کے اطراف میں جو سفید پوش لوگ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آٹے کی لائن، ہر کوئی بندہ آٹے کی لائن میں نہیں لگتا جا کے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھوکے مر جاتے ہیں۔ پچھلے رمضان المبارک میں ایک گھر میں راشن دینے گیا تو وہاں پہ خاتون تھی، ان کو جب میں نے راشن کا تھیلا دیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے گھر میں 4 دن کا راشن موجود ہے، یہ کسی اور کے گھر میں دے دے۔ تو الحمدللہ خدمت خلق کا جو طریقہ اتنا شفاف ہے راشن دینے کا کہ کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتا۔ دوسرا، سرپرست اعلیٰ صاحب یہاں پہ واضح کر گئے ہیں کہ خدمت خلق کی جو فنڈنگ ہے وہ صرف تنظیم ہی ہے، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اس حساب سے اپنا حصہ ڈال دیتا ہے۔ یہ تمام احباب جو بیٹھے ہیں آج اپنا صرف ہاتھ اٹھا کے یہ حصہ ڈالیں کہ ہمارے گھر کے ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ بھوکا نہیں سوئے گا۔ میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں، تمام احباب یہ عہد کریں کہ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے کہ نیک بنیں، نیکی کو عام کریں۔ کسی کو راشن کی ضرورت ہے، اگر ہم آٹے کا تھیلا نہیں دے سکتے تو کم از کم 2 کلو ضرور دے کے آئیں۔ ہمارے سرپرست اعلیٰ کی جانب سے ہمیں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، ان کی طرف سے کھلی آفر دی گئی ہے کہ آپ اپنے طور پہ جہاں پہ آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، کہیں راشن کی پیش آتی ہے۔ خدمت خلق میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کہ ہمارا شجرکاری مہم کا آپ کو پتہ ہے کہ قبرستان کی پہلے کیا حالت تھی۔ اب اگر آپ قبرستان جا کے دیکھیں تو آپ کو جاتے خوشگوار احساس ہوتا ہے، ساتھ ہی آپ کو ایک گراسی گراؤنڈ ملتا ہے جہاں پہ آپ کے بیٹھنے کی وسیع جگہ ہے۔ قبرستان میں پینے کا پانی نہیں تھا، الحمدللہ آج آپ قبرستان میں جائیں گے آپ کو وضو کے لیے بھی پانی ملے گا، بیٹھنے کی جگہ ملے گی، پینے کا صاف پانی ملے گا۔ رات کو پہلے ہم جنازے کو دفنانے جاتے تھے تو لائٹیں ساتھ لے کے جاتے تھے، کسی کی بیٹری چارج ہوتی تھی، کسی کی چارج نہیں ہوتی تھی، اور اتنا یہ سوچا نہیں کسی نے یہاں پہ کہ یہ ایک اہم ضرورت ہے۔ لیکن الحمدللہ اب آپ رات کو قبرستان میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بیٹری ساتھ نہیں لے جانی پڑے گی، وہاں پہ خدمت خلق گروپ کی جانب سے لائٹوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ جب کوئی باہر سے مہمان آتا تو وہ پیر محل، اسے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ پیر محل پہنچ گئے ہوں کہ نہیں۔ اب جب پیر محل میں داخل ہوتے تھے، کھجوروں کے تناور درخت ہمارے صدر صاحب کی جانب سے ہمیں دیے گئے تھے، وہ ہم نے گرین بیلٹ میں لگائے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ریلوے پھاٹک کراس کر کے ادھر آئیں گے تو آپ کو واٹر کولر نظر آئیں گے۔ آپ پیر محل شہر کے مختلف مقام گنانے لگوں آپ کو تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، یہ میں تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے۔ واٹر کولر جو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ واٹر کولر جو ہے وہ بڑے، جس میں 35 لیٹر پانی ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی آپ کو گرمیوں میں ملیں گے۔ اس حوالہ سے اگر کھانے کی بات کی جائے تو سردار صاحب کی جانب سے ایک دسترخوان کا آغاز کیا گیا تھا جو الحمدللہ جاری ہے، خدمت خلق دسترخوان کے نام سے، جو مختلف مقامات پہ لگایا گیا ہے۔ اس حوالہ سے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں تو ہم نے اسے خدمت خلق دیوار کا نام دیا، اور ہمارے پیر محل میں 3 یا 4 جگہ پہ الحمدللہ ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پر خدمت خلق دیوار ہے، اور وہاں پر جو ہے ہم اپنے وہ ملبوسات رکھ کے آتے ہیں، سردیوں کے، گرمیوں کے، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں سے وہ لے جاتا ہے۔ دوسرا جو ہمارا راشن تقسیم کرنے کا عمل ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کسی کی شناخت کو ظاہر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر جب راشن دیا جائے گا تو خدمت خلق کا ممبر ہی اسے وصول کرے گا اور وہ آگے رات کے اندھیرے میں جا کے جو ہے وہ ان تک پہنچائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ باتیں بتانے کا مقصد اپنی تنظیم کی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام احباب اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو پیر محل شہر ایک مثالی شہر کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جس کو کہتے ہیں نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ اور منشور بھی اعلیٰ، ماشاءاللہ
बार बार जिक्र हो रहा था कि रफीकी शहीद वेलफेयर ट्रस्ट हॉस्पिटल चला रहा हूँ या शाहिद भाई कमालिया में हार्ट यूनिट चला रहे हैं, तो यहाँ आके वहाँ पे हम फील करते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं। शायद आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी, वो यार शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ आके फील हो रहा है कि खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी ऐसे मल्टीपल काम कर रहे हैं कि हम एक ही काम को लेके चल रहे हैं, लेकिन आप चारों तरफ में चल रहे हैं जिसकी मिसाल नहीं होती। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि मंशूर भी आला, वाकई मंशूर आला, कि ये भी एक डिफरेंट किस्म का काम है कि इतने बड़े लेवल पे पूरी तहसील में, पूरे पीर माल में काम चल रहा है, लेकिन किसी के आगे फंडिंग की रसीद नहीं जाती, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता, किसी को जाके ये नहीं कहा जाता कि हमने आज राशन तकसीम करना है कि हमारा साथ दें, बल्कि ये लोगों को बताया जाता है कि आप अपने ही मोहल्ले में, अपने ही पड़ोस में, हमसाये में, अपने ही इलाके में जाके करें। क्या तरकीब दी जा रही है जी, आपको सलाम है आप सब दोस्तों को, जितने ये हजारों की तादाद में मेंबरान हैं और अपनी मदद आपके तहत जो काम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि खून के एहतियात, शजरकारी, खिदमत, लोगों को राशन की तकसीम, मतलब हर शोबे में हम सुनते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि जी किसी एक इंसान की जान बचाना गोया कि इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। तो जब किसी एक इंसान को खून का अतिया मिलता है, उसकी जान बचती है, किसी एक गरीब के घर में भूखे बच्चे राशन मिलता है और वो खाना खाते हैं, किसी एक मरीज को दवाई मिलती है, किसी एक मजदूर को व्हील चेयर मिलती है, कोई एक औरत जिसको घर में कमाने वाला कोई नहीं है, वो सिलाई मशीन से अपना रोजगार चलाती है, इज्जत की रोजी कमाती है, जो उसकी दिल से दुआ निकलती है वो अर्श तक जाती है, उसका नेमल बदल कोई नहीं है, वो लाखों करोड़ों में नहीं खरीदी जा सकती। वो जितनी मर्जी मेहनत करके किसी को कुछ दे के कहा जाए कि मेरे लिए दुआ करना, वो दुआ नहीं है। ये जो दुआएं हैं, क्योंकि इबादत के लिहाज से भी यहाँ पे एक बात हुई तो मुझे वो इशफाक अहमद का फिक्रा याद आया। इशफाक अहमद ने कहा था कि इबादत में कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। आपने तो नाम भी खिदमत खल्क रखा है, तो वाकई आप लोग कमाल कर रहे हैं। देखिए, नमाज लेट हो जाए उसकी कज़ा है, हज आप पे फर्ज है, लेकिन जब आपकी जेब इजाजत दे, रमजान आ रहा है, आपके ऊपर रोजा फर्ज है, लेकिन उसमें भी आपके लिए इजाजत है कि अगर आप तबीयत ठीक नहीं है बाद में रख लें, आप बीमार हैं तो आपके लिए छूट है। खिदमत के लिए कोई कज़ा नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपके हमसाये में एक बंदा, किसी का बच्चा, किसी का बाप कोई बीमार, कोई भूखा सो जाए और आप सोचें कि चलें ठीक है कोई बात नहीं, परसों राशन पहुंचा देंगे, परसों इसको दवाई दे देंगे। बहरहाल खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी, चौधरी याद साहब, तारिक साहब, बाकी मेंबरान जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, आप से यहाँ आके हम कुछ सीख के जाते हैं। पिछली दफा भी मैं आया था तो बहुत ही खुशी हुई, आप लोग हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं दिल से आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप ऐसी जगह पे हमें बुलाते हैं, ऐसी नेकियों की तरकीब सारे दोस्तों को देते हैं। हमारा भी दिल करता है कि हम एक शोबे से बढ़कर आगे भी चलें। रफीकी शहीद हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल न रहे, खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी की तरह डिफरेंट शोबे बनाए और पूरे इलाके की खिदमत करे। खिदमत खल्क अगर हॉस्पिटल बनाया, हार्ट यूनिट बनाया या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हम कुछ हिस्सा डाल सके तो हमें खुशी होगी, और इंशाल्लाह आप हमें अपना मेंबर तो आप समझते हैं और हम दिल से अपने आप को आपका मेंबर तस्लीम भी करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे लिए ये बहुत एजाज की बात होगी। शोरकोट के साथ मेरा गांव है, तहसील पीर माल में ही है, इसलिए मेरे आईडी कार्ड पे पीर माल ही लिखा जाता है, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि मैं ये अपने शहर के लिए भी कुछ करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे कार्य खैर में हिस्सा लेने की ज्यादा से ज्यादा तौफीक दे, और जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं और जो खास तौर पे ये कर रहे हैं कि जी जितना अल्लाह ने दिया उसी में से कर रहे हैं। बहरहाल मेरी तजवीज़ है कि साथ जितने दोस्त मिलते हैं, अच्छी तजवीज़ है कि अपने मोहल्लों में करें, लेकिन आपके साथ ऐसे कामों में करेंगे तो 1-1 और 2-11 हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये काम मजीद बेहतर होगा और आने वाले दिनों में पीर महल तहसील की ये वेलफेयर सोसाइटी इंशाल्लाह एक मिसाली सोसाइटी होगी। अल्लाह पाक आप सबका हमें काम कर रहा है, जो ना तो किसी से कोई पैसा मांगता है, ना कोई फंडिंग है,
اور میرا خیال ہے ہزاروں ممبران ہیں اس کے، 27,000 کے قریب۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے کہیں بھی کسی بھی علاقے میں اتنی بڑی تنظیم ہو جس کی ممبران کی تعداد ہزاروں میں ہو اور فنڈ ریزنگ کا کوئی سسٹم نہ ہو، سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہوں، کسی کو روزگار مل رہا ہے اور کسی کے لیے صحت کے لیے اچھی اچھی چیزیں مل رہی ہیں۔ میں ان ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی کام کرنے کی ہمت طاقت دے اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ پچھلے دنوں میں 3-4 دن پہلے ڈی سی صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پیر مل کی ہم نے ہارٹ سینٹر وغیرہ یہاں پہ بن گیا ہے، اس کی اوپننگ کرنی تھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں آج سے 7 سال پہلے چنوٹ ہاسپٹل سرگودا روڈ پہ ایک مریض کو لے کے گیا، یہاں پہ مجھے بھی بڑا شوق پیدا ہوا۔ ایک بزرگ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرا ڈاکٹر صاحب کا ٹائم بنا تھا 8 بجے، وہ رات کے 12 بج کے ڈاکٹر نہ آیا آپریشن کرنے کے لیے، تو اس بزرگ سے میری ذرا منہ ماری ہو گئی، 3-4 دفعہ ہوئی۔ وہ مجھے بار بار یہ کہہ رہا بیٹا بیٹھو، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 1:30 بجے کے بعد آئے، ان لوگوں نے آپریشن کیا۔ صبح 3 بجے میں چلا گیا، صبح اگلے دن میں 10-12 بجے 1 بجے کے قریب آیا، تو مجھے یہ پتا چلا کہ وہ ابراہیم ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے اور وہ 8 گھنٹے وہاں پہ روزانہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا، میں نے اپنے کمالیہ TH کی ہاسپٹل میں اور میرے پارٹنر، ایک میرا دوست کینیڈا میں ہے، ہم نے وہاں پہ 10 ڈیالسس مشینیں اور ایک ہارٹ سینٹر بنایا، جس کی لاگت اس وقت کوئی 7 کروڑ کے قریب آئی اور 1 سال کا تقریباً 3 کروڑ روپے اس پہ خرچہ آ رہا ہے۔ الحمدللہ وہ ہمارے دوست اور ہم فری اس کی ڈیالسس جن مریضوں کا ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی اٹیک ہو تو اس کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ بھی ہم وہاں پہ مفت مہیا کرتے ہیں، اور میں تقریباً ہفتے میں 1 دن 2 دن وہاں پہ جا کے بیٹھتا بھی ہوں۔ جتنے دن میں اپنے کام باقی مصروفیات میں ٹائم گزارتا ہوں، مجھے وہاں پہ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے بھی میں ٹھہروں، مجھے میری اپنی زندگی کے سب کا سکون والا جو ٹائم ہوتا ہے وہ وہاں پہ گزرتا ہے۔ میں جو بھی لوگ خدمت خلق کے حساب سے کام کرتے ہیں ان کو سیلوٹ تو میں کرتا ہی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کو بڑھ کے کیا جائے۔ ہمارے ملک جیسے ہمارے لوگ بہت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ جو اہل کتاب لوگ ہیں ان کو تو عقیدہ ہے کہ آخرت میں کچھ نہ کچھ اس کا صلہ ملے گا۔ کچھ قومیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا اللہ پہ بھی یقین نہیں ہے، یقین جانے وہ بھی خدمت خلق اتنی کرتے ہیں، انسان سوچ کے حیران رہ جاتا ہے کہ ان کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے کہ قیامت کے بعد کچھ ہمیں ملے گا۔ ہمیں تو اللہ کے اور اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک آنے والی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کا صرف اور صرف صلہ انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہمارے ہمسائے ہیں، سب کا خیال رکھیں گے۔ سفید پوش لوگ اس مہنگائی میں خاص طور پہ جو ہمارے 2-3 سال گزرے ہیں، پس گئے ہیں، سب سے زیادہ پریشان وائٹ کالر والے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جہاں تک بھی ہو سکے ان کی سپورٹ کریں گے۔ 2 چیزیں میرے ملک میں بہت کمی ہیں، ایک صحت اور ایک ایجوکیشن۔ جتنے بھی لوگ ہیں اس پہ میکسیمم توجہ دی جائے تو کم ہوگی۔ میں آخر پہ پھر خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی پیر مل کو ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں مدعو کیا ہے۔ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں ساجد بھائی کی طرح کہنے کی طرح ہم اور چارج ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، سلام ہے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔
میں बेहद मशकूर हूँ समी भाई का, उन्होंने मुझे वक़्त दिया। मेरा ख्याल है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी ने और खिदमत खलक के ओहदेदारान ने, आप सब हाज़रीन को बड़े अच्छे से ये खिदमत खलक का सारा जो इन पे इक़दाम है हसन, इनको बयान किया। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले। बतौर शहरी या इनके मेंबर होने के मैं तो शाह साहब की ये बात को थोड़ा सा आगे करूंगा कि अब शाह साहब और साजिद साहब दोनों ने कहा है कि इसमें अगर आपके साथ शहर के जो एक अच्छी अमारत रखने वाले लोग आपको ये ऑफर करते हैं कि हम आपके इस इक़दाम में आपके साथ हैं, तो उनको एप्रिशिएट तो आप करते हैं सरदार साहब, रियाज गुज्जर साहब, लेकिन उनको साथ ले लिया करें, क्योंकि जो मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन है, इसमें बहुत सारे मुस्तहिकीन जो मिडिल क्लास से कहने तलक रखते हैं या कोई अपनी जो है अच्छी एक मुनासिब रोजी का बंदोबस्त करके अपने बच्चों के लिए एक अच्छे उनकी जिंदगी के लिए मसाइल पैदा करते थे, उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हैं। अल्लाह ताला जिन लोगों के कारोबार अच्छे हैं उनमें और बरकत डाले और उन्हें जो लोग पिछे हुए हैं उनकी मदद करने की तौफीक दे, उनको साथ लिया करें, क्योंकि रियाज गुज्जर साहब की एक ऐसी शख्सियत है जिस पे बिलाशुबा शहर में कोई बंदा भी जो है वो इतराज नहीं करता। ऐसी शख्सियात कम होती हैं जो काबिल एतराज हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मामलात पे मैं करूं या आप करें, कोई भी करें, उस पे लोग बड़ी तनकीद करते हैं। तो ये खिदमत खलक की एक जो सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी है इनके एक अच्छे टाइम में 3-4 साल में, वो ये है कि इन पे कोई शहर का हमारे पीर महल से बंदा तनकीद नहीं करता कि ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, रियाकारी कर रहे हैं, कोई अपने सियासी मकासद के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपनी जात को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। ये कम अज कम इस सारे जो है तनकीद से बचे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमा नफसानी के पब्लिक की खिदमत करने की तौफीक दे। और मेरी जो इनके लिए यही एक बात थी कि इसको वसी करें, और अल्लाह ताला ने जो आपसे ये काम लेने के लिए आपको अल्लाह ने ये बड़ी एक बात होती है कि ये देखें कि अल्लाह ताला के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पैगाम देने के लिए 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया पे भेजा। वो मुख्तलिफ वक़्त में अल्लाह का पैगाम लेके आए। इसी तरह अल्लाह ताला आपसे कोई अच्छा काम लेना चाह रहा है तो आप अपनी जिंदगी में इसको अच्छे काम को थोड़ा सा वसी करें और इन मामलात को अच्छे से करें। उसके लिए बतौर शहरी हमारी जो खिदमात हों, जैसी भी हों, हम जितनी हमारी हैसियत होगी हम इंशाअल्लाह ताला उसमें हिस्सा डालेंगे। आप सब लोगों से भी यही जो साहिब हैसियत लोग बैठे हैं, मेरी उनसे ये, अगर सरदार साहब की रजामंदी होगी तो मेरी ये उनसे भी इल्तमास है कि इसको वसी पैमाने पे अच्छे तरीके से सर अंजाम दें और हम इस कारी खैर में इनका हिस्सा बने। वस्सलाम। के साथ साथ एक ताज़ीती नशिस्त भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 2 मेंबरान, जिनमें शहबाज रफीक भाई और हाजी रमजान साहब। खावर साहब इधर स्टेज पे आ जाइए। तो ये जो हमारे सीनियर मेंबरान हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी काविशें और इनके किए हुए काम वो हमेशा रहेंगे, याद रहेंगे। तो मैं आप लोगों से मुल्तमिस हूँ कि इनके साले सवाब के लिए दुआ की जाए। बाद
तारीफ उस रब की जो वहाँ वहाँ रब्बुल आलमीन है, जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन है। मुझे अभी वैसे पता नहीं है कि किस हवाले से है, लेकिन वैसे मैं जानता हूँ इस तंजीम को, और मेरी ख्वाहिश रही है कि मेरे ज़रूर काम लगाया जाए। इस तंजीम से एक छोटा सा गिला है कि ये सिर्फ फिलाई काम कर रही है, ये इल्मी मैदान में काम नहीं कर रही। जिक्र भी हुआ था मेरे एक दफ़ा तारिक साहब से, उन्होंने कहा कि हम इस पर काम करेंगे। हो सकता है कार्य मेरे में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई इल्म के मैदान में भी काम होना चाहिए। शायरा बड़ा हो रहा है तो मुशायरे होने चाहिए। एक दफ़ा हुआ लेकिन मुशायरे इस प्लेटफार्म से नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस मैदान में काम करने की ज़रूरत है। कोई तजवीज़ है अगर आप इस पर भी काम करें। वैसे इसमें से सारे मेम्बरान बड़े बाकमाल, बड़े नफीस, बड़े अच्छे लोग हैं। और मुझे यहाँ याद आ रहा है एक साहब यहाँ हुआ करते थे, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, जो सुल्तान साहब, उनकी खिदमत इस तंजीम में हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी और मौके पर इंशाल्लाह इस पर लंबी तकरीर करेंगे। एक अगेन फिर शुक्रिया कि आप लोग जो है ना, मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पता है कि मैं कितना नालायक आदमी हूँ। जब भी यहाँ पे आया हूँ आप लोग इज्जत दी है, इसका मतलब आप मुझे इज्जत नहीं देते हैं। आप इन दोस्त लोग हैं और खुदा ने आपको ये गुमान डाल दिया कि मैं इतनी आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। बट आप लोग बहुत इसके सताइश के गुजार हैं। और ये साहब जो जिन्होंने मैं भी तारुफ को आया, समीर रहमान साहब, जैसे अल्लाह वास्ते का बैर होता है ना, इन अल्लाह वास्ते का प्यार है मुझसे और बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। खुदा ने हमेशा कामयाब करे। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह खुश रखे आपको। तंजीम के लिए दुआएं भी हैं, और अगर मेरे लायक की खिदमत हो तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, बगैर किसी सताइश के और बगैर किसी नाम के। तो मैं उसके लिए हमेशा, मेरे बड़े भाई हैं तारिक साहब, इनसे चूँकि एक मेरी चपलिश रहती है, वो एक और तरह का मामला है। उसमें मुझे एक और साहब ने आज तशरीफ दी है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ज़ाती तौर पे तो ताल्लुकात जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, बट वो मैं उसके लिए भी ममनून हूँ आप लोगों का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। खुद इस तंजीम का हिस्सा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सरदार रियाज गुज्जर साहब का एक अदना सा सिपाही हूँ। हम भी पिछले कई माह से सरदार रियाज गुज्जर साहब की सरबराही में एक छोटा सा काम लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इनको देखते हुए बहुत से नौजवानों में ये जज्बा पैदा हुआ, और अपनी मदद आपके तहत हमने अपने गांव लेवल में इस तंजीम को आगे बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के कामों को देखते हुए हमने अपने गांव के कब्रिस्तान की सफाई, बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, यूनिफॉर्म, राशन बैग और बहुत से कामों को सरंजाम दिया इन्हीं की सरबराही में। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार रियाज गुज्जर साहब की हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और एक छोटी सी बात, डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि अगर आप के अंदर कुव्वत है कि आप किसी की मदद कर सकें और आप ना करें, तो आप आबिद तो हो सकते हैं, फाजिल तो हो सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं हो सकते। तो अगर आप ये कुव्वत रखते हैं कि अपने हमसाये की, अपने गांव में किसी भी मुस्तहिक की खिदमत कर सकें और आप आंखें बंद कर लें, तो ना इबादत काम आएंगी, यही चीज हमारे आगे काम आएगी। और हमने अपने सरपरस्त आला जनाब सरदार रियाज गुज्जर साहब के इसी मंशूर को आगे लेकर इंशाल्लाह चलना है। और आप सब भाइयों का, आप सब दोस्तों का, हमारे मौजूद मेहमान जनाब चौधरी साजिद अशरफ गुज्जर साहब का, जनाब चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर साहब आजकल बहुत मसरूफ है, कल इनके साथ दिन गुजारा है, देखा है, पता लगा है काफी मसरूफियत है इनको, ये भी टाइम निकाल कर आए हैं। मैं खिदमत खलक के प्लेटफॉर्म से इन तमाम मौजूद मेहमानों का, अहले इलाका का बहुत मशकूर हूँ कि आप हर दफा हमारे बुलाने पर तशरीफ लाते हैं, अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर आते हैं हमारे लिए और हमारे साथ खड़े हैं। और मैं अपनी तंजीम में शामिल होने वाले नए मेंबरान उनको भी वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इंशाल्लाह इसी तरह हमारे सरपरस्त आला सरदार रियाज गुज्जर साहब के मिशन को आगे लेकर चलेंगे। शुक्रिया।
जलील के अजीम नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमारी आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलिफ लाम मीम से वद्दालीन तक एक ही सबक बार बार दिया गया है कि इंसानियत की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना। और मैं इज्जत महसूस करता हूँ खिदमत खलक सोसाइटी जो कि पीर महल में मार्ज वजूद में आई है, कब्रिस्तान की तरफ देख ले या लावारिस लाशों को देख ले जिनका इससे पहले कोई वाली वारिस भी नहीं हुआ करता था। मैं खिदमत खलक के बहुत खिदमत खलक के बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारी खिदमत, और ये वो खिदमत खलक सोसाइटी है जो कोशिश करती है कि इनको पब्लिसिटी ना मिली जाए, जो कि रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को पता न चले। मैं खिदमत खलक सोसाइटी के तमाम ओहदेदारान को, तमाम मेंबरान को पीर महल की धरती पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस लगन, मोहब्बत, खिदमत और जज्बा के तहत इस शहर में इस सोसाइटी को कायम और दायम रखा हुआ है कि आज के इस दौर में जब आप देखते हैं कि खिदमत खलक के लिए किसी के आगे हाथ फैलाया जाए तो बहुत ही सख्त मुआशरा है, बहुत ही बददिल मुआशरा है। और ये वो सोसाइटी है जो अपने वसाइल से, अपनी खिदमत से ही लोगों की खिदमत करते हैं। मैं इनके लिए आखिर में यही कहूंगा कि याद करता है जमाना उन्हीं इंसानों को रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, खिदमत खलक सोसाइटी जिंदाबाद। जनाब चौधरी तैयार हो रही हैं। इसका मकसद ये है कि हर जुबान पे आका जी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम हो और दुरूद शरीफ। जनाब लादी गुज्जर साहब अलाइड बैंक के मैनेजर, अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तो सिर्फ थोड़ी सी मंगवाई है और बाद में हम जो हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं हम वहाँ पे ये सामान पहुँचा देते हैं। बहुत शुक्रिया। मशीनें और इसके अलावा रमज़ान का जो पैकेज हमने तैयार किया है वो खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी है, वो वाहद जमात है पीर महल की जो लावारिस लाशों का जनाजा भी पढ़ाती है, उनके कफन दफन का इंतज़ाम भी करती है। और ये जो आज हमारे लिए शाइया है, जो खाने का इंतज़ाम है वो सरदार साहब की जेब से हम करवाते हैं। तो वो जो हम अपनी आपस में फंडिंग करते हैं उसमें से नहीं होता, ये सरदार रियाज साहब का जेब खर्च होता है।